Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि इस ज़माना we the youngsters का. So we have a very hectic life. We do so many things throughout the day. Some are multitaskers, some have pressures, maybe job pressures, relationship pressures, and there are lot many things going in our mind. हम लोग कहते हैं ना दिमाग में कितना चलता ही रहता है. So we need something that can help us and our mind to be relaxed and do what we actually want and what we deserve to do it. So there are many techniques related to mind and one of the technique I just know the name is NLP, that is neuro linguistic programming. I don't know more than that because I just know the full form, and there are so many things that is being attached to this NLP and what is it, कितना फ़ायदा ये हम लोगों को दे सकता है and what kind of language our mind has, and हम अगर दिमाग की भाषा समझने लग जाएं या वो हमारी भाषा समझने लग जाए तो what would be the scenario, I sometimes wonder. So talking about NLP is not what I am good in, but yes, I have one guest with me on this City Trends, that is Dr. Manisha Gaur. She has done PhD in many mind techniques and she has done study about NLP a lot, and she's the CEO and founder of Rupantaran. So ma'am, welcome to the show. And NLP is for a layman like me, NLP is just neuro-linguistic programming because we know the full form. But the thing is, we don't know what is exactly NLP. So talking about the crux of the meaning of this NLP, what is it? अगर हम आम भाषा में देखें तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप बाज़ार से एक मोबाइल लाते हैं, आप एक टीवी खरीदते हैं या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप खरीदते हैं, तो उसके साथ आपको एक छोटा सा बुकलेट आता है जिसमें सारा कुछ दिया रहता है कि इसके पार्ट्स कैसे ऑपरेट होंगे या इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या सारा यूज़र मैनुअल हम कहते हैं किसी के लिए. बट दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका ब्रेन है, जिसने ये सब बना लिया है, उसके लिए हमारे पास कोई यूज़र मैनुअल नहीं होता. तो इन NLP हम कहते हैं कि NLP इज़ लाइक अ यूज़र मैनुअल फॉर योर माइंड. एंड आप आपके दिमाग को चलाना अगर सीख जाएं, अगर ब्रेन को ट्रेन करना सीख जाएं, तो यूजिंग NLP टेक्निक्स वी कैन ट्रेन आवर ब्रेन फॉर वॉट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ. So this is like a very simple language to train our brain. पर मैम हम कहते हैं ना कि दिमाग और दिल किसी की सुनते नहीं हैं. So how does this NLP works exactly? See, we have lot of techniques and we use those techniques, and हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो हम ये कहते हैं कि बार बार जो दिमाग को कहा जाता है या बार बार जो देखा जाता है या बार बार जो चीज़ें सामने से गुज़रती हैं वो हमें याद हो जाती हैं या वो हमारी मेमोरी में आ जाती हैं. So we have two side of our mind. One is conscious. कॉन्शियसली आप मेरे से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं. अनकॉन्शियसली जो भी आपके आसपास होता है वो आपके अनकॉन्शियस में जाता है. व्हेन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस वर्क टुगेदर, देन द सक्सेस इज देयर वेयरएवर यू वांट. सो वी आर वर्किंग विद द अनकॉन्शियस टू ट्रेन whatever the person want in their life. I mean, you want to change a habit, you can do that. Using NLP. You want to plan new habits, you can do that. Sometimes there are memories जो कुछ बुरी memories होती हैं हमारे लाइफ में जिसके कारण हम आज भी आगे नहीं बढ़ पाते. We can delete them. Then we have some phobias, we can delete them. And sometimes we want to learn new things, but there are a lot of things we have inside which stops us, जो हमें रोकती हैं आगे नई चीज़ों को सीखने से और नए रास्तों पे जाने के लिए. So we clean the negative energies, and negative emotions inside you, so that you will ready to accept all new things as a new person. So there are lot many things. Means आपका कहना है कि हम जो सोचते हैं और हम जो जैसा जीवन exactly देखते हैं वैसा हम बना सकते हैं, लाइक अ हेल्दी लाइफस्टाइल और मे बी कुछ अच्छी आदतों के साथ हम जीवन जो जीना चाहते हैं वो हम NLP के थ्रू अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं. यू आर सेइंग दिस. सो हाउ डज इट स्टार्ट? मीन्स अगर आपके पास कोई इंसान आता है तो वो सबसे ज़्यादा क्या ही इज़ इन सर्च ऑफ और ही वांट्स दैट.
सी देर इज़ अ वेरी फेमस डायलॉग, मे बी आपका पूरा यूथ टीम इसको जानता होगा कि शाहरुख खान का डायलॉग है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है. सो इन NLP वी बिलीव इन दिस. आप जो चाहते हो वो होता है ज़िंदगी में. आप कितना शिद्दत से चाहते हो, उसके लिए कितना आप जुनून से लगे हुए हो. यूजिंग NLP टेक्निक्स यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. वी बिलीव in if any person in the world can do it, I can do that. We believe in there is no other resources required. Your mind, your brain is the only resources you need. And we believe in the meaning of the communication is the response you get. अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं और जो रिस्पॉन्स आप चाहते हैं वो नहीं आ रहा, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर कम्युनिकेशन. ईदर योर वर्ड्स, योर लैंग्वेज, योर टाइमिंग्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर, योर पोस्चर, योर टोनैलिटी. सो NLP is basically how to communicate verbally, non-verbally, and we believe we just affect 7% from the words, 38% from the tonality, and rest our gesture, posture and everything. That's great. So आप जब किसी इंसान पे काम करते हैं तो मे बी यू हैव 100 clients, all 100 are different from each other. मे बी उनकी हैबिट्स अलग है, उनका ट्रेन होने का तरीका अलग है. बट व्हेन यू कम अप विथ सो मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पीपल, what is one thing common you actually teach them, one or two thing common you want them to do it? There may be different issues, बहुत सारे अलग अलग issues होते हैं जो लोग लेके आते हैं, but ultimately they either want to be happy or healthy. एक तो हेल्दी होना चाहते हैं और हैप्पी होना चाहते हैं. अगर मैं केस स्टडीज़ की बात करूं तो बहुत सारे लोग जो पहले आदतें होती हैं कि रात को 2 बजे तक 3 बजे तक फ़ोन पे, मोबाइल पे, मेल पे लगे होते हैं और एक समय ऐसे हो जाता है कि वो जल्दी सोना चाहते हैं फिर भी नहीं सो पाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे आदतों में NLP बहुत वर्क करता है. और मुझे ऐसे लगता है कि रात को अच्छी नींद सुलाने के लिए मेरे पास जो भी आया होगा मैंने उसको ज़रूर अच्छी नींद सुलाई है. 10:30 मैक्सिमम 11 o'clock नींद आ ही जाती होगी आफ्टर वर्किंग विद द क्लाइंट्स. सो हाउ डिड यू केम अप टू NLP एंड आपको क्यों लगा कि पीपल रियली नीड दैट? पीपल हैव गुड पोजीशंस, दे हैव गुड सैलरी पैकेजेस, बट व्हाट दे डोंट हैव इज द काइंड ऑफ रिलैक्सेशन एंड मे बी द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दे डिजर्व इन देयर लाइफ. सो डू यू थिंक दैट this was one of the reasons you are doing this for people, and you are making people follow the right routine? There are a lot of people came to me जिनके पास अच्छा पैकेज है, अच्छा बिल्डिंग है जो वो चाहते थे, अच्छी गाड़ियाँ हैं, बट दे केम टू मी कि ज़िंदगी में हमने अचीव तो बहुत कुछ कर लिया है बट मज़ा नहीं आ रहा. सो NLP taught you from the first day कि what is good for you, जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा. और जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा अगर तुमने उसी में करियर बना लिया तो फिर आप 40 साल बाद, 45 साल बाद मज़ा ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाओगे. So when we plan our life, we just plan the amount, the buildings, the cars, the properties. But NLP starts from you. When you start learning NLP, you just come to know what I am. What is my physiological self? What is my psychological self? And what exactly I want? And मैं actually किस काम के लिए इस दुनिया पे हूँ. और जब आपको ये पता चल जाता है then you will be clear about doing whatever you're doing. तो आप ऐसा कुछ करते ही नहीं हो जो गैर ज़रूरी है. आपको पता होता है अपने आप के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, और आप वो करते हो जो आपको लगता है खुशी देगा और स्वास्थ्य देगा आने वाले समय के लिए. जी मैम, आपने कहा एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड. सो आपने कहा व्हेन दीज बोथ वर्क टुगेदर the person can achieve anything he or she wants, but is that a problem? Is that they always goes opposite each other, or maybe they repel each other, conscious and unconscious mind? मैं ये आपको समझाऊंगी एक छोटे से एग्जांपल के साथ. एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, और उनका प्रॉब्लम ये था कि जब भी वो खाना खाने बैठते थे तो वो कहते थे मैं ऐसे खाता हूँ जैसे अगली बार मिलेगा या नहीं. और और वो छोड़ना चाहते थे उसको.
लेकिन कई बार ज़्यादा खाना खाने की वजह से उन्हें कई बार लिवर में सूजन हुआ, कई बार वो एडमिट भी हुए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, पर उन्होंने वो नहीं छोड़ा. सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ द क्लाइंट, पहले हमने जब शुरू किया तो अनकॉन्शियस इज़ नॉट रेडी टू कोऑपरेट, बिकॉज जब भी आपने ज़्यादा खाया होगा, अनवांटेड ईटिंग किया होगा, तब आपको उससे नुकसान हुआ. तो अनकॉन्शियस इज़ गिविंग यू ऑलवेज सिग्नल्स दैट आपके लिवर में स्वेलिंग आ गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और जब आप नहीं माने तो देन अनकॉन्शियस सेड ओके गो. सो देर आर ऑलवेज सिग्नल्स वी आर गेटिंग. जब भी हम कुछ भी गलत करते हैं, या तो अपने विचारों के साथ या अपने फूड के साथ जो हम फिज़िकल बॉडी को देते हैं, तो हम हमेशा सिग्नल हमें मिलते हैं. और जब आप उन सिग्नल्स को नहीं मानते या नहीं पहचानते, देन दे कम एज अ डिसीज़ टू यू. सो अगर आप देन सेकेंड टाइम फिर हमने उनको बुलाया, एंड देन वी वर्कड विद सम एक्टिविटीज़ फॉर अ मंथ, एंड देन अगेन थर्ड टाइम आफ्टर 3 months when I was doing the session, then unconscious get ready to help. And then 4 to 5 months we take to get rid of that habit. And now he is like normally with that good habit. Ma'am, I think the one thing that everybody is suffering, and maybe the youth is suffering, is from the relationship issues, I guess, because I think आपके पास भी बहुत clients आते होंगे जो relationships में बहुत deep down inside grudges हैं उनके मन में, insecurities हैं, and maybe there is something they really want to quit or maybe adopt something. So what are the major problems that anybody faces in relationship? See, there are we always say negative emotions, क्योंकि एक तो आप खुद को नहीं जानते सबसे पहले कि आप क्या हो. आपके अंदर परिस्थितियों वश से कभी भी हम किसी भी नेगेटिव इमोशन को अंदर नहीं रखना चाहते, लेकिन कई बार एटमॉस्फेयर ऐसे होता है, हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते, तो वो अंदर रह जाता है और वो इकट्ठा होते रहता है. ऐसे ही कई बार हमने कुछ ऐसे गलती किया होता है, हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि ये नहीं करते, तो उससे बाहर निकलना चाहिए, ना कि गिल्ट की तरह उसको अंदर रखना चाहिए. इफ़ यू हैव गिल्ट, हर्ट, फियर, एंगर इनसाइड यू, देन किसी भी रिलेशनशिप में अब जब आप जाते हैं, तो जब नहीं भी ज़रूरी होता ये इमोशंस बाहर आते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ऑलरेडी थे, भरे हुए हैं. एक एग्जाम्पल आपको दूं तो सड़क पे जब दो लोगों की गाड़ियां टकराती हैं, कोई भी घर से सोच के नहीं निकलता कि मैं लड़ूंगा, बट बाय चांस अगर कुछ टक्कर हो गया तो वो इस तरह से लड़ते हैं जैसे स्पेशली प्लान करके आए हों लड़ने के लिए. तो ये ज़रा सी, जबकि किसी की गलती नहीं होती. तो ये इसलिए होता है कि वो एंगर पहले से अंदर बहुत सारा रखा होता है, और जैसे ही उसको कुछ पॉलिशिंग मिलता है वो बाहर निकल आता है. सो इफ़ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, पुराने सारे नेगेटिव इमोशंस को डिलीट करके फिर रिलेशनशिप में एंटर हों, और अगर कोई ऐसी बात है जो आपको कहनी है तो कह के ख़त्म करें, उसको अंदर नहीं रखें. हम अंदर रखते हैं, वो इकट्ठा होता है, वो गलत समय पे ब्लास्ट होता है. तो जो अच्छा समय भी होता है वो भी वो साथ लेके चला. यस. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैम ने कहा. मुझे खुद की भी लगता है ये कि कई बार हम लोग किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालने वाली जो बात है वो बहुत करते हैं. सो मैम, NLP इज़ वन थिंग दैट इज़ हेल्पिंग सो मैनी पीपल. सो आपका क्या वर्डिक्ट है कि हु आर द पीपल हु शुड एक्चुअली कम अप and get aware about NLP, and you know they should come up with their problems, and they should actually should not feel afraid of telling you about their problems. I think there could be n number of problems and there could be n number of bad habits, but the one thing one is conscious about is telling the bad habit. मैं अपनी अच्छाई बताने में एक बार संकोच नहीं करूँगी, पर मैं मेरी बुराइयाँ बताने में ज़रूर संकोच करूँगी. तो वो चीज़ों के लिए आप लोगों को कितना चाहती हैं कि दे शुड कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स एंड शुड डिस्कस देम. सी, अगर हम कोई भी बात है हमारे अंदर, हमें लगता है कि हमें बदलना है, अगर हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे तो हम बदलने की स्थिति में कभी भी नहीं आएंगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है. हमारे जब NLP ट्रेनिंग शुरू होता है तो फर्स्ट डे लोग हेजिटेट करते हैं, सेकेंड डे से वो ढूंढ के लिख के लाते हैं कि मैम ये भी है, इसको भी निकालना है, मैम ये भी करना है. सो वो दे आर इन टू द मोड ऑफ लर्निंग एंड क्लीनिंग देयर सेल्व्स. तो दे कम अप विद कि नहीं ये एक चीज़ रह गई, ये इस पे कैसे करूँ, ये एक चीज़ रह गया, इस पे कैसे करूँ. सो NLP इज़ फॉर टू नो योर सेल्फ फर्स्ट.
What is the basic time that has been taken by any person to, to attain whatever he or she wishes to? अगर एक किसी छोटी सी चीज़ के चेंज के लिए हम बात करते हैं तो कभी कभी से एक सेशन भी काफ़ी होता है कि आपके ज़िंदगी में एक बदलाव ले आए। और ये डिपेंड करता है कि अगर कोई नेगेटिव इमोशन है तो वो कितना पुराना है। और एनएलपी में एक ही अच्छी बात है कि आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि पूरा, कई बार लोग नहीं बताना चाहते, नहीं शेयर करना चाहते कि मेरे ज़िंदगी में एक बार ऐसे हुआ था। अगर आप नहीं भी बताएंगे, आप मुझे बता रहे हैं टाइमिंग्स, इवेंट्स, डिटेल्स, और फिर उस इमोशन को हम वहाँ से निकाल सकते हैं बिना ये जाने कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी। सिर्फ हम ये जानते हैं कि इमोशन कौन सा है। इज़ इट अ गिल्ट, इज़ अ हर्ट, is a anger, is a frustration, anything. Means a person can say कि उस समय मुझे ये गिल्ट फीलिंग हुआ था इतनी बजे और इस डेट पे या इस टाइम पे या इस सिचुएशन में, बट वो गिल्ट किस वजह से था अगर ये नहीं भी बताएंगे तो भी उनका ट्रीटमेंट होता है। This is the best part. This is the best part in This NLP. actually gives a relief to many people because sometimes people are very conscious about telling. उनको लगता है कि किसी को पता नहीं चल जाए कि मैंने ऐसे किया था, तो वो अगर हमें बता भी रहे हैं तो वो गिल्ट का क्या लेवल है या वो इमोशन का क्या लेवल है वो पता करके वी कैन गिव देम रिलीफ कि आप अपने आप सारा कुछ सोचो। एंड देयर आर टेक्निक्स जिसमें उन्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट वी वर्क विद देम एंड गेट rid of them. And those are all practical techniques which actually helps a patient. Yes, and बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि हम अनकॉन्शियस के साथ काम करेंगे तो क्या करेंगे। दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, उनको सारा कुछ समझ में आता है। उनके साथ काम करने के दौरान किसी भी तरह के डर की ज़रूरत नहीं होती है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आप करती क्या हैं, तो मैं उनसे यही कह सकती हूँ कि आप आएँ और एक बार एक्सपीरियंस करें।